भाई जतिन सनी का है भाई जतिन सनी का है। हाँ 1 मिनट जतिन सनी को बुला रहा हूँ मैं। उधर से लो ताकि थोड़ा वीडियो पीछे ठीक है सर। सावधान सावधान सैल्यूट। बीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चूरू में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पेंट करा ही दिया बढ़िया है। नमस्कार सर। हम परेशान हो गए थे 50,000 में पूरा हो गया सर। लास्ट क्लीन कलरिंग थोड़ा सा ओके। सावधान सावधान सर सामने ओके सर। केंद्रीय विद्यालय चूरू में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पीछे मोड़ सामने से तेज चलेगा तेज चल। सर आओ पास में। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो फिर रिसीवर में रिसीव कर लेता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का पता चल जाता है। तो ये किस तरह से डायरेक्शन ये क्या है माइंड डिटेक्टर है क्या? फिर उसके बाद उसमें बनाइए मतलब डिफिकल्ट है लेकिन स्टिल पूरा कर लिया ना। मेरा तो यही सुझाव है आपको कि जो ATM है
ये कारपेट सूट है यहाँ लगाएगा बता दो कब आएगा 25 चाहे छोटा ही बनाए चाहे उसमें 2 रजिस्टर 2 रजिस्टर लगा के अगर कंपनियाँ जलाना हो तो नहीं सकती लेकिन तो उस साइड पास में अच्छा अपने यहाँ वाला ATL का 3D प्रिंटर ATL वाला भी तो है ना ठीक है ऑलवेज अवॉइडर किया ट्रैफिक प्रोटेक्शन स्मार्ट रोड है सर हाँ इसमें पावर सप्लाई देने से ये जो दोनों IR सेंसर इससे स्पीड में जो जिस टाइप की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी ना वो आवाज़ में 50 10 में कितने परसेंट है 80 और भी सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करो करो बारिश में तो हुई है पूरे लग जाएंगे आधे पूरे लगे ना तो सारे लगेंगे बस सर एक मिनट सर पास में इधर से ले यार ये नाम आसिफ है ओके सर Our honorable chief guest, Shri Abhishek Surana, IAS, District Collector and District Magistrate, Churu, Chairman BMC has arrived among us. Are a guiding light, a role model and a symbol of excellence. And our shining stars, yes, our students, to the most awaited celebration of the year, that is PM Shri KV Choru's annual day celebration. बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है It's not it where memories are made, talents are displayed, and each corner of our campus glows with pride and passion. So, Every student's light shines forth, illuminating the path of learning and growth that defines our school's noble journey. Honorable guests, dear teachers, beloved parents, and to all my dear friends, a very warm welcome to all of you. Today, it's a pleasure to have you all gathered here tonight to celebrate the hard work, spirit, and talent of KV Churu. It is the moment when silent effort Respected dignitaries, may the light of the lamp guide us towards excellence and may it illuminate our path towards knowledge, wisdom, and success.
पानी डालना है ना, वो भी लगाना है क्या बिल्ला? वो लगाएंगे Thank you, sir. At this, to welcome our other VIP guests, Singh RPS Additional SP Churu, for your presentation. Good evening, everyone. Children, sir. Sir is a source of inspiration for all the children and for to staff also. He has been a great story of success in himself. He did BTech from IIT Delhi. Then he served in an international bank. He qualified as an IPS officer, and then in next attempt he became an IAS officer. So this is a sparkling story of success which motivates all the young children. Even as a government officer, he dedicates 8 to 12 or 15 hours every day. We all government employees should learn a lesson from him. To have such a dignitary with us is really a blessing in itself. Sir, we welcome you all once again. I welcome Sri Satpal Singh, RPS Additional SP Churu. I welcome Sri D.K. Saneji, Retired Joint Commissioner, KVS. And I welcome all other invitees and parents and students and media persons who have spent time and come and make this program happen successfully and cheerfully. I take this opportunity to present a brief report on our last year's successes. As we all employees of the central and state government and other children of the Churu town and nearby villages as well. The school plant sprawls over 15 acres of land. It has 968 students under the care of 40 teachers. It has good spacious classrooms, well-equipped laboratories and almost all playgrounds. The school has 2 computer labs, 78 computers and 17 projectors. Under the PM Shri scheme, Vidyalaya has acquired 15 interactive panels to make teaching learning process more effective. Installation of firefighting system, 200-meter track and renovation of electric fitting are under process and will be materialized very soon. A toy library has been established and it makes teaching learning process more interesting in primary section. The vocational lab has also been constructed and it has become operational from today itself. Sir has inaugurated it today. This prayer stage has been enlarged, renovated and covered with a shed, as you all can see. In academics, the school produced 100% result in class 10th and 100% result in class 12th in the session 24-25. There were 79 students in class 10th and 90 students in class 12th, all passed with good scores. 12 of our students in class 12th and 13 of our students in class 10th got more than 90% marks. And I am sure of maintaining this academic excellence in coming years as well. As far as co-curricular activities are concerned, our students excel not only in academics, they excel in co-curricular activities as well. In sports, 18 of our students are going to participate at KVS national level. We were the host of KVS regional level athletic sports meet, which with the kind favor of our Honorable Chairman Sir, was organized at District Stadium in April this year. This school has a unit of Scout and Guide. Total 280 students are registered in Cub, Bulbul, Scout and Guide. 9 students got Rajya Puruskar. The values of preparedness and social services are inculcated through Bharat Scout Guide activities. The school has a mixed unit of NCC, mixed in the sense we recruit boys and girls both. Students learn discipline and patriotism through various camps and other activities of NCC. In November 2024, 2 of our cadets attended All India Trekking Expedition in Rajpipla, Gujarat. Ek Bharat Shresth Bharat and Kala Utsav. Our team of mime got 2nd position at regional level. Our team of 52 students participated in Youth Parliament at Jaipur and she got 2nd position. Hello. In Akhil Bharatiya Sanskriti Gyan Pariksha, our student Riya Chaudhary was at 1st position at Tehsil level.
This Vidyalaya is now a PM Shri Vidyalaya. Various activities were conducted under this scheme such as workshop on artificial intelligence, camp for self-defense, adolescent education, workshop for girls, visit to historical places and scientific institutions, etc. All important days and festivals such as Ek Ped Maa Ke Naam, Children's Day, International Yoga Day, Hindi Pakhwada, Sadbhavna Divas, Vigilance Week, Swachhta Pakhwada, Run for Unity are celebrated with all wow and enthusiasm every year. To develop the creativity among the little birds, school e-magazine Padmakshi was brought out last year and we are working on this year also. National Education Policy 2020 has been implemented in KVS. We as a team are working to come true to the expectations of all parents, children and other stakeholders, and I assure you that we will leave no stone unturned to come true to their expectations. The credit of all good work and achievements goes to my dedicated staff who work tirelessly till late hours and even on Sundays and holidays, and support of sincere students and cooperative parents. Thank you very much for giving me a present here. Thank you. Perseverance. It's a moment that reflects the countless hours of dedication, the quiet discipline and the undying spirit of those who close rise above challenges to give their very best. To honor these achievers, we are privileged to have with us Shri Abhishek Surana, IAS District Collector and District Magistrate Churu, Chairman VMC, whose life itself who got 96.2% in class 12th board exam. सर सामने अरे क्या बात है सर सामने ओके सर आप मम्मी आए क्या कर रहे हो क्या नाम फाउंडेशन हो गया साइंटिफिक वहाँ से शुरू से आपका हाँ आर्टिकल से कभी Next is Kumkum Sihag. She got 95. आर्ट्स में आप किताब इनको सेलेक्ट करो अच्छा आर्ट्स में टॉपर Next is Krishna Goenka, who got 95.6%. सर सामने ओके सर लोहिया से लेकर कौन लोहिया से ले तो महारानी महारानी जयपुर
अच्छा आगे क्या करना है? थोड़ा अलग से चलो कभी मिलने आना। हाँ कॉफ़ी हमारे घर पे रखो। कृष्ण वाणिज्य सर सामने ओके सर Next is Raghav Mittal. He got 95% marks. ओके सर अक्षत कुमार बुडानिया। 10th के बच्चे जो यहाँ प्रेजेंट हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ध्यान दें। भावना, तालियां नहीं बज रही हैं, बच्चों को प्राइज दिए जा रहे हैं और तालियों पे कंजूसी हो रही है। यशवर्धन शर्मा, सर सामने Yashvardhan Sharma, he got 92.6% marks. Gunjan Agrawal, she got 92.2% marks. Jatin, क्या कर रहे हो? क्या काम है? Jatin got 91.6% marks. क्या कर रहे हो? क्या काम है? अभी तो 12वीं क्लास में नहीं कॉलेज क्या कर रहे थे? कॉलेज क्या कर रहे थे? अच्छा साढ़े के लिए यहाँ क्या काम है? अच्छा मिलना पड़ेगा बच्चों से यार, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। Vanshika, she got 91.4% marks. Class 10th के टॉपर्स इसके बाद भावना, प्रियांशु सैनी, प्रतिष्ठा, यश माथुर, जिया प्रजापत, निशांत। इस ऑर्डर में भावना ने टॉप किया, 97% मार्क्स लिए उसने। NCSC में भी उसने पार्टिसिपेट किया था नेशनल लेवल पर। प्रियांशु सैनी, सर सामने देखा सर सर ओके सर पिताजी को रिलेटिव से लक्ष्मण ने आप मार्क्स बढ़ गए She got 95.4% marks in class 10 board exam. सर सामने सीकर में चले गए आप भी? ओके सर कैसा चल रहा है? Jia Prajapat, she got 93.6% marks and she is one of the best volunteers of this school also. आपने यही यहाँ कुछ किया है? अच्छा क्या सब्जेक्ट किया? Nishant, on behalf of him. Next we are going to honor award for academic excellence from class 1 to 11. First of all, from 3rd Jayan, बहुत बढ़िया 4th is Nikhil Rathod, डांस भी करते हो, पढ़ाई भी करते class 5 Mohammad Anas Khan, class 6 Daksh Jhajadia, class 7 Lakshmi Ranwa, class 8 Tejashwi Sharma, class 9th Bhavishya Sharma, class 11th Mahima Meena, class 11th A Mahima Meena, class 11th B Gunjan Chaudhary, class 11th C Astha. Next, award for 100%
100% attendance. The students will be ready. Palak, Samriddhi, Punit Singh, Jatin. Award for 100% attendance. This is being given for last year. First of all, Palak of class 6th B, Samriddhi of class 8th B. We should appreciate their parents also, because without parents it's not possible that the students comes regularly. बड़े गर्व के साथ हम अनाउंस कर रहे हैं विधि शर्मा, हमारे विद्यालय की छात्रा जो कि खेलो इंडिया में सेलेक्ट हुई है। उसके दादाजी यहाँ अवेलेबल है उसका प्राइज लेने के लिए। वो खुद एक गेम्स कैंप अटेंड कर रही है, अवेलेबल नहीं है। विधि शर्मा। कुछ और खेल अचीवमेंट्स हैं हमारी। दिव्यांशु सारण, javelin throw, he got bronze medal and he got check of ₹5,000. Raksha Prajapat, under 19 girls, 300 meters walk, she got gold medal and 10,000 rupees check. Kanak Lata, under 19 girls, 300 meters walk, she got silver medal and 8,000 rupees check. Vidhi Sharma is also receiving check of ₹10,000 because she got first prize in under 17 girls 10 meters air pistol. Available on behalf of them. Kindly come and receive the prizes. Please come fast. बच्चे रुके नहीं, आप स्टेज पे आ जाएं तो आगे चले जाएं. Now we are announcing the prizes for Green Olympiad. Ayush Sarova of class 6th B, Distinction Award. Kushagra Tetrwal of class 6th A also participated in Green Olympiad and he also got the same award. Now the best NCC cadets, Sashank and Khushi got best NCC cadet award. Class 11C and Cheshta of class 10th A got best scout and guide award. Cubs and Bulbul section, Riddhi and Jaswant Singh have got best Cub and Bulbul golden era award. Now Bharatiya Sanskriti Gyan Pariksha was conducted and Riya of class 7th B, she got first prize in Tehsil level. Riya of class 7th B. Now we are honoring our volunteers also. Nikunj 11th A, best volunteer, Supriya and Jignesh. Children's Day was celebrated in a very effective, creative manner in our Vidyalaya. Students, they set up their stalls and we are awarding here best stalls. Those who got maximum sale that day. So first of all, I would like to call Akshita of class 6th A, Sneha of class 6th A, Kanishka Ranva of class 6th A. इन बच्चों ने दुकानें लगाई थी चिल्ड्रंस डे पे और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कमाई इनकी दुकान से हुई थी. So they are going to be the businessman in future. CCA best performance of the year, Vagisha of class 10th A, Monica of class 12th C, Aarti Ranva of class 10th B, Hardika of class 9th B, Meera class 7th A, Drishti class 12th C.
Now it's time to give awards to our teachers also. First of all, we are going to start from primary section. LET exam. LET means Learners Aptitude Test. Some teachers of our school, they have given outstanding result in LET exam. So we are calling and honoring them here also. We are awarding them for their best results on regional level for EVS subject. Mrs. Neelam Kumari madam, for best result in Hindi, class 5 Hindi, best result Mrs. Neelam Kumari, and Mr. Manish Kumar Sharma, HM sir. Now it's time to give awards to our secondary section teachers. First of all, I would like to call Shri Anjani Kumar, PGT. Sir has produced outstanding result with very good PI. Shri Savarmal Seni, PGT History. Shri Govind Rakshak, PGT Political Science. Shri Manipal Swami, PGT Physics. Shri Amar Chand, PGT Maths. Shri Atul Pandey, TGT Hindi. Shri Chanda Saini, TGT English. Trophy, the winner house, and it goes to Raman House. Srimati Seema Sharma, Shri Amar Chandji, Shri Atul Kumar Pandey. थोड़ा आगे जो सर देखे जी आप आओ ना बीच में सनी जी ओके मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सर डीके सैनी सर आज केंद्रीय विद्यालय चुरू के पेरेंट्स, हमारे प्यारे बच्चे, स्कूल का समस्त स्टाफ, अन्य सभी मंचासीन जितने भी महानुभाव हैं, अधिकारी, मीडिया के साथी, आप सभी को सबसे पहले तो मुझे लगता है हम बड़े किस्मत वाले हैं कि आज हम ये एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का भी दिन है एंड आई थिंक देयर इज नो बेटर डे टू सेलिब्रेट स्कूल, सेलिब्रेट टीचर्स, सेलिब्रेट एजुकेशन देन गुरु पूर्णिमा। तो प्रिंसिपल साहब ने जो डेट चूज करी, मुझे लगता है मैंने तो बड़ी कंकरेंस दे दी थी, लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज। तो मैं इसके लिए प्रिंसिपल साहब को भी बधाई देता हूँ। आज चूंकि दिन भर बारिश हो रही थी तो दिन तक भी हमें लग रहा था कि शायद हम ये फंक्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सुबह से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड एंड अभी हमने कुछ परफॉर्मेंसेज देखी। मुझे लगता है मोर देन 15 परफॉर्मेंसेज आर लाइंड अप। थोड़ा प्रोग्राम हमने जल्दी कर दिया क्योंकि बारिश होगी तो उसमें दिक्कत ना हो।
एक एनुअल फंक्शन जो होता है वो स्कूल के जो पूरी साल भर की जो गतिविधियां होती है उसको सेलिब्रेट करने का एक मौका होता है। हम भी जब छोटे थे, स्कूल में थे, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू आवर एनुअल फंक्शंस। और अभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इस बार इन्होंने एक ऐसा करा है कि कोई भी परफॉर्मेंस होगी तो स्टेज पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हर बच्चे को मौका मिले। आज अगर इस स्कूल में 950 से अधिक बच्चे हैं तो मुझे ये बताया गया है कि लगभग 500 बच्चे जो हैं आज स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, 500। तो दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, मैं शायद 8वीं में था, 8वीं नहीं शायद 9वीं में था, और हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ और वो आखिरी रो में जो डांस करने वाले लोग होते हैं उनमें से मैं था। लेकिन आज भी मुझे वो मेमोरीज याद हैं कि हमने 1 महीने तक तैयारी करी और कितनी मस्ती करी और क्या क्या किया, एनुअल फंक्शन के लिए कैसे गए और कितना खुश हुए। तो मुझे लगता है वो बच्चों के लिए बड़ा मेमोरेबल है। जो सबसे लास्ट लाइन में स्पेशली जो बच्चे खड़े हैं, आगे वाले तो हमेशा अच्छा ही करेंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसके लिए वो बहुत मेमोरेबल है। और इसलिए प्रिंसिपल साहब और उनकी पूरी टीम मुझे लगता है धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने ये प्रयास किया कि हर बच्चे को आज स्टेज पर आने का मौका मिले। और साथ में मुझे ये भी बताया गया कि 60 बच्चों को जो अभी हमने यहाँ पे सम्मानित किया है उसमें से लगभग 15-20 ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में अच्छा किया। तो लगभग 540-550 बच्चे, more than 50% of the total strength of the school will be on the stage tonight, and I think that's a big achievement and call for another round for an applause from all of you कि उन लोगों ने इतना अच्छा करा है। एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए जो टीचर्स ने पिछले 15-20 दिनों में, महीने भर में जो मेहनत करी है, चूरू जैसी जगह पे इतना बड़ा फंक्शन आयोजन करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। बच्चों की ड्रेसेस कहाँ से आएंगी, कॉस्ट्यूम्स कहाँ से आएंगे, इनको सिखाएगा कौन, ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं। हम भी जब छोटे थे तो वी यूज्ड टू फेस दिस। तो इसके लिए भी जो भी प्रयास सारे टीचर्स के द्वारा किए गए हैं और पेरेंट्स के द्वारा किए गए हैं, मुझे ध्यान है कि इसलिए हम अभी कुछ पेरेंट्स को भी मंच पे बुला रहे थे कि बच्चे से ज्यादा मेहनत मुझे लगता है उसके पेरेंट्स करते हैं। आज कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है कि 100% अटेंडेंस रही उनकी, तो मुझे लगता है बच्चे से ज्यादा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने कैसे ये इंश्योर किया कि साल में एक भी दिन वो बच्चा छुट्टी ना ले। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, और जिन्होंने आज एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी जो पेरेंट्स ने करवाई है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज एनुअल फंक्शन है तो ये एक दिन भी है कि हम रिफ्लेक्ट करें कि पूरे साल भर हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अभी जब रिजल्ट आए थे उसके बाद हमने स्कूल की जो बीएमसी है उसकी मीटिंग भी करी और आई वाज वेरी प्लीज टू नो, आप में तो शायद काफी लोगों को पता होगा, पेरेंट्स को, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता होगा, कि इस स्कूल का राजस्थान में जो 78 स्कूल्स हैं, 78 स्कूल्स में कॉमर्स स्ट्रीम में हम राजस्थान में फर्स्ट हैं। मतलब फर्स्ट का मतलब ये है कि 100% रिजल्ट आना तो एक बात है कि भाई 100% रिजल्ट है, सारे बच्चे पास है, वो तो सब पास है, लेकिन वो क्वालिटेटिव रिजल्ट की कितने बच्चों के 90% से ज्यादा है, कितने के 80 से 90 के बीच में है, उस क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे हम लोग जो है, ये जो केवी चुरू है, उन सारी 78 स्कूलों में फर्स्ट नंबर पे है। और दूसरी बात, जो ये 78 स्कूल हैं, इनके ओवरऑल रिजल्ट में, यानी 10th और 12th का जो ओवरऑल क्वालिटेटिव रिजल्ट बनता है, 100% पास अगेन सारे बच्चे हुए, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिजल्ट है उसमें हम 7th नंबर पे हैं। तो वो भी बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उसके लिए प्रिंसिपल साहब और आपकी पूरी टीम, सारे बच्चे, सारे टीचर्स, पेरेंट्स, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जब से ज्वाइन किया मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है स्कूल की गतिविधियों में। मेरे पास नवोदय विद्यालय में भी एज अ डेजिग्नेट चेयरमैन का चार्ज है, यहाँ पे भी चेयरमैन का चार्ज है। मेरा प्रयास रहता है कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि जो नई जनरेशन है, जो आने वाले जो देश का भविष्य है, इनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। बेस्ट से बेस्ट का मतलब है वर्ल्ड क्लास। हम इस चीज़ में संतुष्ट ना हो कि हमारी स्कूल जयपुर की स्कूल के बराबर है। हमारी स्कूल जो है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत अब मानना है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जिस तरह से दुनिया कनेक्टेड है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चे उस लेवल के होने चाहिए कि अगर इनको 12वीं का हमारा बच्चा, और 12वीं का चाहे अमेरिका का बच्चा हो चाहे ब्रिटेन का बच्चा हो, दिल्ली बॉम्बे की भी हम बात नहीं करेंगे, उसके बराबर है कि हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड
हमारे जो विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल साहब से जब भी मिलता हूँ ये कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं। आज भी हमने देखा कि एक नई लैब का उद्घाटन हुआ है। कुछ दिन पहले हमने अटल टिंकरिंग लैब को लेकर काफ़ी चर्चा करी कि कैसे बच्चों को 3D प्रिंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम कैसे बच्चों को ओरिएंट करें, कैसे हमारे बच्चों को 6ठी 7वीं 8वीं से ही कोडिंग, हैकिंग और इन चीज़ों की तरफ जागृत करें। इसको लेके भी हमने काफ़ी चर्चा करी। तो हमारा प्रयास यही है एज ए VMC की तरफ से भी, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, कि हमारे बच्चे दुनिया के किसी भी बच्चे से पीछे ना रहे। उनको वो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए कि वो जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए उनको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ये स्कूल प्रोवाइड कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। इस मौके पे मैं बच्चों से भी कुछ बात कहना चाहूँगा। जो बात मैं अभी कह रहा था उसी से जुड़ती हुई बात है कि कई बार अभी मैं मंच पे भी कुछ बच्चों से पूछ रहा था कि बेटा आपको क्या बनना है, आपके क्या सपने हैं, क्या ड्रीम्स हैं। तो एक दो बच्चों ने तो कहा कि हमें UPSC करना है, हम भी IAS बनेंगे। पता नहीं, शायद मैं खड़ा था तो मुझे देख के होगा चलो हम IAS के नाम ले लेते हैं कि IAS बन जाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि हम CA बनेंगे। मेरा बच्चों से यही अनुरोध है, स्पेशली जो बच्चे 7वीं से 10वीं के बीच में हैं, कि कभी भी सपने देखने में कंजूसी मत करें। मैंने पिछली बार भी शायद मुझसे ये बात कही थी कि सपने देखने में कंजूसी ना करें। आप जब कोई सपना देखें तो वो सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको अचीव करने में फिर उतनी मेहनत लगे। कई बार हम अपने सपने ही बड़े छोटे रख लेते हैं कि जी क्या बनना है, कि जी मैं तो पटवारी बन जाऊं तो बढ़िया है जीवन में, ग्राम सेवक बन जाऊं तो बढ़िया है। ये कोई बुरी बात नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गांधी जी भी यही कह के गए थे कि भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एंड आई ऑल्सो एग्री टू दैट। लेकिन बड़े सपने देखने के कोई पैसे तो लग नहीं रहे। आज आपको ध्यान होगा, जैसे हम यह बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हिंदुस्तान का ही एक लड़का, आई थिंक कानपुर से है, शुभम शुक्ला, ही इज देयर एज ए एस्ट्रोनॉट। तो वो जब छोटा था, मैं उसकी लाइफ स्टोरी देख रहा था कि उसने पहले सोचा कि मैं पायलट बनूंगा, पायलट वो बन गया। पायलट के बाद उसने वो जो अपना एस्पिरेशन था स्पेस में जाने का, वो छोड़ा नहीं। इंडिया ने जो गगनयान करके जो अभियान चलाया था, उस गगनयान अभियान में वो एनरोल हुए, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग करी और आज वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सपने देखने में कभी कंजूसी ना करें, बच्चे खासकर। और पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि जब बच्चा कोई सपना देखे तो हमें उसकी राह में रोड़ा नहीं बनना है। हमें उनके सपनों को नहीं एक उड़ान देनी है। उनके सपने पूरे कैसे हो सके इसके लिए हमें प्रयास करना है। अभी मेरे लिए प्रिंसिपल साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने भी इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी, स्टार्टअप्स भी किए, उसके बाद ये मेरी 30वीं नौकरी है। मेरे घर वालों ने सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, मेरे पेरेंट्स को, जिसके लिए मैं बड़ा थैंकफुल रहता हूँ, कि उन्होंने कभी मेरे से नहीं कहा, स्पेशली आफ्टर 10th और 12th, कि बेटा आपको ये बनना है। उन्होंने मुझे कभी रास्ता नहीं दिखाया, मैंने अपना रास्ता खुद चुना और उन्होंने उस रास्ते को सपोर्ट किया। मैं जब इंडिया के बाहर नौकरी करता था तो मुझे याद है जब मैंने डिसीजन लिया कि वो नौकरी छोड़नी है, तो वो नौकरी छोड़ के वो 30 दिन का नोटिस पीरियड पूरा करके जिस दिन मेरा अंतिम दिन था, उस दिन मैंने शायद घर वालों को बताया कि जी अब तो मैं इंडिया आ रहा हूँ वापस। तो वो बेचारे परेशान हुए थोड़े दिन तो, लेकिन दे वर वेरी सपोर्टिव। कभी आज तक उन्होंने इस बात को, लगभग आई थिंक 10-12 साल हो गए, उन्होंने कभी पलट के नहीं कहा कि बेटा ये इससे बेटर तो वही था। तो मुझे लगता है कि एक तो एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको जितना हम सपोर्ट कर सके उतना करना चाहिए। दूसरा, सपने देखने में कोई कमी ना रहे, ये इंश्योर करना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब बड़े सपने देखते हैं तो असफलता भी मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको सफलता मिल जाएगी, डायरेक्ट ही आप जो है मान लो सीधे अंतरिक्ष में चले जाओगे, जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। उसके लिए भी जरूरी है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। ये कोई कहने की बात नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज है। जितना हम अपनी असफलताओं से, फेलियर से सीखते हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि हम किसी किताब से, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग से, किसी टीवी सीरियल से सीखते हैं। एक्सपीरियंस सबसे बड़ा टीचर होता है किसी भी चीज के लिए। मैंने खुद ने जब UPSC का एग्जाम दिया तो मैं सर को भी बार बार बताता हूँ कि ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था जब मैं UPSC में IAS बना। तो कहने को तो हम भी IIT से थे, कहने को तो IIT में मेरा 200 में रैंक था,
लेकिन फिर भी 4 अटेम्प्ट लग गए यूपीएससी क्लियर करने में। तो जब वो 4 अटेम्प्ट लगे तब ये बात कभी नहीं आई कि यार पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरे में कुछ हुआ, चौथे में कुछ हुआ कि जी अटेम्प्ट छोड़ दें, अब ना करें, या एकदम हतोत्साहित हो गए। आजकल तो मैं सुनता हूँ, ये तो बात 7-8 साल पहले की है, आजकल तो डिप्रेशन, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी हो रही है, ये नई चीजें और चालू हो गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है कि असफलता मिले तो उससे सीखिए। असफलता क्यों मिली है, फेलियर क्यों हुई है, कहाँ मिस्टेक रहेगी, उसको फाइंड आउट करिए, उस पर वर्क करिए। स्पोर्ट्स में आप एक्सेल करते हैं, कहाँ पीछे रह गए, पढ़ाई में करते हैं, कहाँ पीछे रह गए, वो चीज आइडेंटिफाई करिए, उस चीज पे काम करिए, और उस चीज पे इतना काम करिए कि जो एंटायर यूनिवर्स, सारी कायनात जो है वो लग जाए कि आपको सक्सेस मिल के रहे, तब तो कोई बात है। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर डेस्टिनी भी जो है वो कहते हैं ना, डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप इतनी हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तो मुझे लगता है कि किस्मत और कायनात और यूनिवर्स और भगवान भी जो है वो साथ नहीं देगा। तो बच्चों से यही कहूंगा कि असफलता जो है फिर डरना नहीं है, उससे सीखना है, फेलियर्स पे काम करना सीखिए। एक बात आज आपने और देखी होगी, हम बच्चों को किताबें दे रहे थे मंच पर। किताबें देने का भी एक उद्देश्य था। हमें लगता है कि आजकल ये जो डिजिटल युग है, मोबाइल का जमाना है, सब मोबाइल में लगे रहते हैं, किताबें पढ़ने की जो इच्छा है और जो एक कला है वो खत्म होती जा रही है। मैं प्रिंसिपल साहब के भी यहाँ जब भी आता हूँ स्कूल में, हम लोग लाइब्रेरी विजिट करते हैं। मेरा फेवरेट जो एरिया रहता है वो लाइब्रेरी रहता है। या चुरू में भी एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है हमारे मेन मार्केट में, वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ का मैंने भी कार्ड बना रखा है। और हमारा ये प्रयास है ना सिर्फ टीवी में बल्कि सारी स्कूलों में कि बच्चे अधिक से अधिक किताबों की तरफ रुझान उनका बढ़े। किताबें भी जितना आपको दुनिया के बारे में बताएगी, मुझे नहीं लगता कोई और चीज उसके लिए उतना सक्षम है आपको बताने के लिए। पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को किताब पढ़ने की, मैगजीन्स पढ़ने की, न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, इनकी आदत डालिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर पे जो हमारे सरकारी जो स्कूल से उनके जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको सबको बुलाया था। लगभग 50 बच्चे थे। उन 50 बच्चों से हमने पूछा जी कि आप क्या करना चाहते हो, कि जी ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि जी आप में से कितने लोग डेली अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि उन 50 में से 15 बच्चे ये कह रहे थे कि जी हमें IAS बनना, हमें IPS बनना। तो आप ताजुब करेंगे कि उन 50 बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने हाथ खड़ा किया हो कि मैं डेली अखबार पढ़ूं। तो ये तो हमारी स्थिति है। हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम मैगजीन्स नहीं पढ़ते, हम बुक्स नहीं पढ़ते। हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हो गए। तो मुझे लगता है एज ए पेरेंट ऑल्सो, एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, वी शुड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू एंश्योर दैट रीडिंग हैबिट्स आर इनकलकेटेड इन द स्टूडेंट्स। सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे 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 करके ये हमें प्रयास करना है कि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स सुधरे, रीडिंग हैबिट्स बने, उनके लैंग्वेज स्किल्स सुधरे, उनके राइटिंग स्किल्स सुधरे। तो मुझे लगता है कि फिर जो कई सारे बच्चों के जो एस्पायरेशंस हैं वो पूरे होने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय ले लिया, काफ़ी सारी बातें आपसे करी। मैं अगेन प्रिंसिपल साहब को पूरा धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया और बारिश के मौसम में आपने हिम्मत करी प्रोग्राम आयोजित करने की। दैट इटसेल्फ कॉल्स फॉर बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम। सभी पेरेंट्स को अगेन धन्यवाद। आपके जो बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं उनको धन्यवाद, और जिनके बच्चे आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिन बच्चों को आज मौका नहीं मिला है, आई थिंक जो बात मैंने पहले कही, अगली बार हमें पूरा प्रयास करना है कि 950 के 950 बच्चे मंच पे किस प्रकार से आए, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, एक हमारे विद्यालय परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा।